तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में बेसिकली फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो वी हैव टू सी whether the signal is periodic or it is नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से, जो कि अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करते, और पीरियोडिक सिग्नल कौन से, जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से, और अगर वो है नॉन पीरियोडिक तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से, DTFT से। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोरियर सीरीज से, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। Today we will be restricting ourselves to discrete time Fourier transforms. इसमें हम restrict करेंगे अपने डिस्कशन को। We will be restricting to discrete time Fourier transforms. तो discrete time Fourier transforms क्या होते हैं? अगर कोई सिग्नल नॉन रिपीटेटिव मीन्स कि वो अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं कर रहा है, xn, लेट अस सपोज xn is the नॉन रिपीटेटिव signal which is not repeating its values, then it will be in frequency domain, it will be represented by x omega. Okay, x omega, where x omega is called DTFT. It is called DTFT. Okay, so what is the relationship between xn and this x omega? The relationship is this. Relationship states that if you take Fourier transform of xn, if you are taking Fourier transform of xn, then it will be x omega. It means n domain से हम frequency domain में जा रहे हैं. Omega is the frequency, and it will be equal to summation n changing minus infinity to plus infinity x of n e raised to power minus j n. Okay, where omega is a continuous frequency. So basically this parenthesis means it will be a continuous function. X omega is a continuous function which can be obtained by this transformation. This is xn and this is xj omega. Okay, and inverse DTFT, ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इनवर्स DTFT मीन्स क्या, अगर हम इसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स मीन्स गोइंग अप फ्रॉम ओमेगा डोमेन टू n domain, omega domain to n domain, and it will be xn, and this xn will be defined as 1/2 pi summation integration from pi to minus pi to pi x omega e raised to power j omega n and d. This is called inverse DTFT. Yani moving from n domain to omega domain is forward Fourier transform called DTFT, and from omega domain to n domain we are moving from
omega domain to n domain, and this is called inverse DTFT. This transformation is called inverse DTFT. Okay, this is the definition of DTFT. A signal given in n domain, n means time domain, or in frequency domain. This is one and the same thing. मतलब सिग्नल को टाइम डोमेन में भी दिया जा सकता है xn की तरह, या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया जा सकता है ओमेगा की तरह. बोथ ऑफ देम आर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिग्नल. ठीक है, टाइम डोमेन में xn एंड ओमेगा डोमेन में ओमेगा. ओके, now suppose we have, let us find out DTFT for simple signals जैसे डेल्टा है. इसका DTFT क्या होगा? What will be the DTFT of delta? So as per definition, इसका DTFT होगा, DTFT of delta n will be equal to summation n changing minus infinity to infinity delta n del n e raised to power minus j n omega. Now we know that what is delta n? Delta n is the signal whose value is 1 when n is equal to 0, and its value is 0 when n is not equal to 0. Okay, so putting this value here, you can say that n तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, बट नॉन जीरो वैल्यू इसकी 1p है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस j n ओमेगा, और n की वैल्यू इक्वल टू 0. इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि डेल्टा n का जो DTFT होता है वो होता है 1. ओके, डेल्टा n का जो DTFT होता है वो है 1. और un का क्या होगा? un का DTFT क्या होगा? un का ये ऐसे ही निकाल लेंगे. अब इसकी जगह हमको un लिखना पड़ेगा. व्हाट इज un? un is unit step signal whose value is 1 for the positive values of n. So we can write it to be n changing 0 to 1 e raised to power 0 to infinity, 0 to infinity minus j n omega. Okay, minus j n omega. And what will be its value? It is a GP whose value is 1 upon 1 minus r. What is common ratio? Minus j omega. Okay, minus j omega. So DTFT for un is 1 by 1 minus e raised to power j minus j. Okay. Similarly, you can also see that the DTFT for डेल्टा अगर शिफ्टेड इम्पल्स हो, शिफ्टेड इम्पल्स मीन्स अगर m टाइप से शिफ्ट कर रहा है, देन एज पर डेफिनेशन, जैसी डेफिनेशन ऐसे इसमें लगाओगे. यहाँ पे तो n की वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ पे DTFT इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे n की वैल्यू m हो जाएगी. ठीक है, यानी कि e रेज़ टू पावर माइनस j n w, और ये कब 0 होगा? जब n की वैल्यू इक्वल टू m होगी, यानी n की वैल्यू इक्वल टू m होगी. मीन्स दैट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा j m omega, j m. So DTFT for shifted del function with this. Okay. Similarly, shifted अगर हमारे पास un है, यानी कि DTFT for u n minus m will be equal to
समेशन, अब ये m से स्टार्ट होगा, यानी कि n चेंजिंग m टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n। नाउ इट्स फर्स्ट जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी e रेज़ टू पावर j, और gp का सम होता है a नॉट 1/1 minus r. Okay, a naught is the first term, so what will be its first term? Its first term will be minus j omega m. Okay, यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, n की वैल्यू m रखी, ये फर्स्ट टर्म होगी, और कॉमन रेशियो 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा, ये इसका DTFT किया जाएगा फॉर शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए आपका DTFT। ओके, अगर हमारे पास एक जीपी ही हो, जैसे कि सपोज ये है रियल जीपी, xn इक्वल टू xn इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n un, अगर ये है a रेज़ टू पावर n un, अगर ये है DTFT, इसका क्या हो जाएगा, x ओमेगा विल बी समेशन। अब un से स्टार्ट हो रहा है तो u हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, a रेज़ टू पावर n और e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n। ओके, ये तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो हो जाएगा a e रेज़ टू पावर j ओमेगा, यानी कि 1 माइनस a e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा, ये इसका DTFT। ओके, ये इसका DTFT। अगर सपोज हमारे पास है ये, सपोज xn is equal to a minus a u changing from negative side -1 minus n minus, इसका क्या होगा, अब इसकी वैल्यू जो होती है, ये नेगेटिव साइड से आ रहा है, ये वाला सिग्नल un जो है नेगेटिव साइड में है, और कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू 0, ठीक है, -1 तक आ रहा है, -2 -3 -4, यानी कि ये नॉन जीरो वैल्यू है इसकी माइनस साइड पे। दिस इज व्हाट इज -n -1, okay, so what is this, so it means that we have to sum it, so x ओमेगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x ओमेगा हमारे को सम देना पड़ेगा, समेशन n चेंजिंग फ्रॉम -1 to -infinity, okay, -1 to -infinity, या क्योंकि -infinity से लेकर -1 तक हमें इसे ऐड करना है, यानी कि -a रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n, ये आ जाएगा इसका DTFT। ओके, और अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए -infinity से आएगा, इसको अगर हम सपोज कीजिए n को चेंज करते हैं -1 से, यानी कि लेट अस चेंज n बाय -n, तो क्या आएगा, जहाँ पे माइनस आ गया वहाँ पे इसको प्लस देना पड़ेगा, यानी कि m चेंजिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, अब -a, अब यहाँ पे n है तो -m आ जाएगा, और यहाँ पे n है तो ये प्लस आ जाएगा, j ओमेगा m, ठीक है, एंड व्हाट वी कैन से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है तो माइनस को कॉमन ले लिया, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 e रेज़ टू पावर j ओमेगा प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस j